First things first, let's launch Aroflix. This channel is going to be called Aroflix from now onwards, while Avi Studio continues to be the overarching production, so to say, but Aroflix is what will be the name of this channel going forward. So what's up guys, Abhishek here from Aroflix. And in today's video we are going to talk about a moving bed filter for your Arowana tank sumps or filters. So before we get started, if you haven't already subscribed to this channel, then please go ahead and hit the subscribe button and don't forget to hit the bell icon. So I'm going to talk to you about a couple of contests towards the end of this video, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि क्या कॉन्टेस्ट है, क्या होने वाला है. काफ़ी 2-3 चीज़ें हैं, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ, बट आप लोगों को बताता हूँ और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको तो वैसे भी आरओपीटी में मिल जाएगा. तो द फर्स्ट वीडियो आफ्टर द चैनल हैज़ बीन रीनेम्ड टू Aroflix is about, like I said, the moving bed filter. So we're going to talk about K1 Media. A couple of things about K1 Media, what it does, why it's a good media, and how to use it as a moving bed filter and why you should use it as a moving bed filter. Okay, so if you remember, in one of my previous videos I had spoken to you about the nitrogen cycle, the heart of any aquarium, where all the uneaten food, the waste and all of that gets converted to ammonia, which is very, very harmful to the aquatic animals. And that ammonia needs to be broken down into nitrite and eventually nitrates, which is comparatively less harmful, and that can be removed out of the water through water changes mainly. So for converting ammonia to nitrite and to nitrate, you need some nitrifying bacteria, and they are mainly aerobic bacteria that thrive in the presence of oxygen. So while you'll find a lot of biomedias which will help in growing these nitrifying bacteria or beneficial bacteria in simple language, as a lot of us say, they may not be as efficient, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके मीडिया, एक मीडिया के ऊपर दूसरा मीडिया और दूसरे मीडिया के ऊपर तीसरा मीडिया, ऐसे ही करके हम लोग फिल्टर के अंदर रखते हैं और पानी उसके थ्रू फ्लो होता है. तो कॉमन क्या होता है, वाटर मूव्स थ्रू द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जहाँ पे सबसे कम रेजिस्टेंस रहेगा पानी वहीं से मूव करेगा. तो अगर 2-3 मीडिया के बीच में जो गैप रहेगा उसमें से निकलेगा. इसका मतलब ये नहीं कि वो फिल्ट्रेशन नहीं होता है, बट इट्स नॉट द मोस्ट एफिशिएंट फिल्ट्रेशन. तो उस फिल्ट्रेशन को हम और ज़्यादा कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं. और ये जो मैंने अभी बताया, जहाँ पे मीडिया इज ऑल फिक्स्ड इन वन प्लेस, उसको मेनली बोलते हैं द फिक्स्ड बेड, सो कॉल्ड. तो हम लोग बात करेंगे K1 मीडिया की. तो अगर आप देख रहे हो K1 मीडिया, ये छोटा सा ये एक प्लास्टिक टाइप का कुछ है जिससे बहुत ही बढ़िया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बन सकता है, या फिर what you call as the beneficial bacteria. We make a moving bed filter with it. Okay. Now the advantage of this particular media is that it allows a lot of surface for this kind of beneficial bacteria to be growing in it. So if you see these inside, you got this cross kind of a thing. इसके अंदर all the bacteria grows slowly. Eventually you will see it becomes brown. It's not just algae but also because of formation of bacteria. So these bacteria are the ones which convert the harmful ammonia to nitrite and then to nitrates. Okay. And how do you make a moving bed filter? उसको basically you have a container or a compartment in your sump. वहाँ पे you put the media in and fill it up basically proportionately, and then you use an oxygen. उसको oxygen दो आप ताकि वो घूमे उसके अंदर. You need it to move. Now why do you need that thing to move? Reason क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, ट्रिकल फिल्टर से क्या होता है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस से वाटर निकल के चला जाता है. इसमें क्या होता है, बिकॉज द मीडिया इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन सबमर्स्ड इन द वाटर, उसकी वजह से ये हो जाता है कि the water is all around the media, which means the water is flowing through the media. So the media is always getting enough and more ammonia to feed on, to thrive on, and convert that into less harmful nitrates via nitrites. And because it's forming a lot of aerobic bacteria, they thrive because आप oxygen एक stone use करोगे which you are going to make it move.
तो ये पूरी चीज़ जो है ये बन जाती है आपकी मूविंग बेड फिल्टर, बिकॉज द होल थिंग इज चर्निंग ऑल द टाइम एंड इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ गुड बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब आप मीडिया डालोगे उसमें, जब आप K1 मीडिया डालोगे और नीचे से आपने जब पंप डाला हुआ है, जो एयर बबल्स ऊपर जा रहे हैं, आप देखोगे कि ऊपर अटका हुआ है वो। तो क्यों अटकता है? और हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं कि हमारा मूविंग बेड फिल्टर नहीं चल रहा है, मीडिया नहीं चल रहा है, तो हम उसको फिर निकालते हैं, कुछ और करते हैं उसके बाद। बट डोंट डू एनीथिंग लाइक दिस। इट टेक्स सम अमाउंट ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन हाउ मच बैक्टीरिया इज ऑलरेडी देयर इन योर वाटर। उसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन होने में जरा टाइम लगता है। वंस द बैक्टीरिया फॉर्म्स इन इट, बिकॉज दीज आर वेरी लाइट, तो ऊपर अटका रहता है। जैसे ही बैक्टीरिया उसके ऊपर फॉर्म होता है, उसके अंदर फॉर्म होता है, इमीडिएटली इट बिकम्स हेवियर एंड ट्राइज टू गो डाउन, बट द ऑक्सीजन इज पुशिंग इट अप, सो द होल थिंग स्टार्ट्स चर्निंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जानने की कि अगर आपका मीडिया ऊपर अटक रहा है, और वो अटकेगा ही जब आप पहली बार उसको पानी में डालोगे, क्योंकि वो बहुत लाइट है। उसको मूविंग बेड बनाने के लिए बैक्टीरिया ग्रो होना जरूरी है। उसके लिए यू कैन पुट सम बेनिफिशियल बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल माइक्रोबैक डाल सकते हो, या फिर माइक्रोलैब H2 डाल सकते हो, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया डाल सकते हो, तो कल्चर द बैक्टीरिया मोर सो दैट उसके अंदर वो बैक्टीरिया ग्रो करे, फिर वो मूव करेगा। नाउ द रीजन व्हाई इट्स गुड व्हेन इट्स मूविंग, एक तो मैंने बताया अमोनिया बहुत मिलता है, ऑक्सीजन है वहाँ पे, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बनता है। लेकिन ऐसा क्या होता है ना, हर एक बैक्टीरिया का भी एक लाइफ साइकिल होता है। तो उसमें क्या होता है, वंस द डेड बैक्टीरिया एक्यूमुलेट्स, तो उसमें क्या होता है, न्यू बैक्टीरिया कैन नॉट फॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ अदर मीडिया, तो हम उसको मीडिया को क्लीन करना पड़ता है और वो सब। इसमें क्या है, सेल्फ क्लीनिंग है, बिकॉज इट्स मूविंग, इट इज कोलाइडिंग विद ईच अदर। तो उससे क्या होता है, ऑल द ओल्ड डेड बैक्टीरिया दे मूव ऑफ, दे गेट ऑफ द सर्फेस ऑफ द K1 मीडिया, ड्यू टू विच न्यू बैक्टीरिया कैन फॉर्म इन देयर। तो कॉन्स्टेंटली नया बैक्टीरिया फॉर्म होते रहता है एंड इट्स अ सेल्फ क्लीनिंग थिंग। तो इससे आपको बहुत बहुत फायदा हो सकता है। लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी मूविंग बेड फिल्टर कैसे बनता है, तो ऐसे ही बनता है ये मूविंग बेड मीडिया। ये आप सम के अंदर बना सकते हो जैसे मैंने बनाया हुआ है, या फिर आप जैसे एक और मैं दिखा रहा हूँ, आपका अगर सम्प नहीं है तो किसी भी एक छोटे साइज के डब्बे के अंदर भी आप ऐसे बना सकते हो, जहाँ पे उसके अंदर एक ऑक्सीजन पंप डाल दो और वो घूमते रहेगा उसके अंदर ही। ठीक है, तो ये है K1 मीडिया। उसमें एक और खास बात ये है कि उसमें नॉट ओनली बैक्टीरिया फॉर्म्स बट ए हायर ऑर्गेनिजम्स आल्सो विल फॉर्म विच आर कॉल्ड फिल्टर फीडर्स। कि ये माइक्रोस्कोप के अंदर वो कैसा दिखता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज हाउ इट लुक्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। इट फॉर्म्स फिल्टर फीडर्स विच सक्स इन द वाटर, क्लीन्स it decomposes or eats all of the uneaten food and the wastes. तो इट्स लाइक ए हायर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया इज अ लोअर ऑर्गेनिज्म, बट दिस इज अ हायर ऑर्गेनिज्म। वो भी फॉर्म होता है K1 मीडिया के अंदर। तो दिस K1 मूविंग बेड मीडिया इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मीडिया, एंड फॉर योर अरोवाना टैंक्स और एनी टैंक्स फॉर दैट मैटर, इट कैन वर्क वंडर्स। आई हैव बीन यूजिंग इट एंड इट कीप्स द वाटर एक्सट्रीमली इन गुड कंडीशन। तो आप लोग ट्राई कीजिए K1 मीडिया फिल्टर कैसे बनाना है और कीजिए। उसमें क्या है, सिंपल सा है, ऑक्सीजन पंप इट शुड बी क्वाइट पावरफुल। उसमें जो काफ़ी पावर से वो चलना चाहिए। इफ इट इज़ अ वेरी स्मॉल स्टोन इन अ बिग चेम्बर देन इट विल नॉट वर्क। ठीक है, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, वैसे ही आपको बनाना है। स्टिक्स डाल सकते हैं और बिगर स्टोन डाल सकते हैं टू हैव मोर ऑक्सीजन फ्लो इन टू इट सो दैट द एंटायर बेड मूव्स। ठीक है, तो ये था K1 मीडिया के ऊपर जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने अरोवाना टैंक के अंदर या फिर किसी भी टैंक के अंदर। ओके, तो ये था आज का टॉपिक। ठीक है, तो मूव करते हैं ज़रा कॉन्टेस्ट के ऊपर। एक तो कैलेंडर कॉन्टेस्ट अपना जो खत्म हुआ है अभी उसका सम ऑफ यू पीपल हैव नॉट गिवन योर वीडियोस, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गिव योर वीडियोस द वे आई हैव आस्क्ड इट विद हैशटैग आरोपीडिया 2021 कैलेंडर कॉन्टेस्ट ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, तो वो डाल देना। ठीक है, तो मैं जल्दी से आप जो विनर्स के 12 कैलेंडर है वो बनवा के मैं आपको भेज दूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम, like I said, we are going to come up with a contest which will be for the Super 8. I'm going to tell you more about that contest in my next video. We are also going to come up with something called a टीका टैनिंग चैलेंज। ठीक है, ये टीका टैनिंग चैलेंज मैं लेके आ रहा हूँ जो अगले संडे को स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, रिमेंबर द डे, अगले संडे से स्टार्ट होगा। आई विल किक स्टार्ट इट नेक्स्ट संडे। इसके सारे रूल्स आपको आरोपीडिया और इंटरनेशनल एक्वाटिक सोसाइटी में मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये दोनों ग्रुप्स के मेंबर होना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये कॉन्टेस्ट क्या है, एंड देन यू कैन टेक पार्ट इन। द फर्स्ट प्राइज विनर विल गेट ए टीका कलर अप लाइट फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड कॉन्टेस्ट। जैसे बहुत सारे कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो चुका हूँ कौन सा क्या कॉन्टेस्ट है, बट डिटेल्स आपको आ जाएंगे। आरोपीडिया IAS दोनों में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे डिटेल्स आपको आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आज शाम को करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास एग्जैक्ट टाइम मैं आरोपीडिया में डाल दूंगा। आई एम कमिंग लाइव
and we are going to talk about some very very interesting things. So stay tuned, join कीजिएगा and we can have a good conversation there as well. ठीक है ना? Okay, so that's pretty much it for today's video. अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी नीचे कर दीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा. ठीक है? Thank you so much for watching. Till I come back in the next one, continue watching Arrowflix. Peace.